Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the second lecture of the topic antihistamines. I have given you the introduction that what is the histamine, the endogenous ligand for its targets, how many targets are there, and what are the antihistamines, what is the function, side effects. And then now we will see the chemistry of antihistamines, the classification of antihistamines, how many different classes are there. And as I have told you that whenever we use the term antihistamines, it means H1 blockers, or the agents which are going to antagonize the H1 receptors. Piperoxine was the first molecule which actually used to block the effect of histamine-induced bronchospasm. And if you will see the structure of this piperoxine, you will find some kind of similarity in the structure and the chemistry of the antihistamines, which we will see ahead. Then, based upon this structure, number of molecules have been synthesized and investigated for their H1 blocking activity. And then finally, we got a number of molecules. And as these molecules, which were designed to block the histamine, were not selective, those molecules were not selective, and they can cross the brain. They can enter the brain easily by crossing the blood-brain barrier. So and as they were not selective, so they were able, or they are able, because they are in use, most of the molecules or some of the molecules of different classes are in use, so they are able to bind with different receptors, different targets. So they are not only H1 blockers, or they are not going to antagonize the histaminic receptors, but they are also responsible to block the dopaminergic, cholinergic, serotonergic receptors. And as a result of this non-selectivity, molecules or the agents which were used as antihistamines, they were responsible, or they are responsible to produce number of side effects, which we have seen in the last class. We have different classes, but all these classes are going to share some common structure features, and we will see what is the main requirement, what are the structural requirements for the molecules act as antihistamines. This is the examples which are under the first generation antihistamines. Then we have second generation, and most of the molecules in the second generation belongs to the first generation, as we have done certain modification in the first generation. As a result of this modification, molecules become safer and selective. So the most common side effect which is associated with the first generation is the sedation. And the second generation antihistamines are, because of their selectivity, they are devoid of or without of sedation, so they are also known as non-sedating antihistaminic agents, जिन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करने से जो है वो उस तरह से जो है वो गनूनगी या नींद नहीं आती, जिस तरह से फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के साथ ये मसला है. सो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ दिस सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन इज रिड्यूस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस reduce CNS penetration and selectivity, molecules are better and safer. These are the molecules which are under the heading of second generation. और इन्हीं molecules में से, इन्हीं molecule में, जैसे for example in the case of terfenadine was associated with a severe side effect, life-threatening side effect, कार्डिक एडिमिया. इसका जो मेटाबोलाइट है वो सेफ है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से लोराटाडीन का मेटाबोलाइट है, वो भी जो है वो इक्वली एक्टिव है और गुड
to act as antihistaminic agent. So molecule is available as a drug. Then citrazine is a mesomeric form of citrazine is एक्टिव एज एंटीहिस्टामिनिक एजेंट बट इसकी जो एक एनंशियोमेरिक फॉर्म है लीवो लीवो जो इसकी जो आइसोमर है वो ज़्यादा एक्टिव है सो दैट्स वाई इट्स प्योर एनंशियोमेरिक फॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ नोन एज लिवोसिट्रिजीन these small changes or you can say जो difference है जैसे मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट है फेक्सोफेनाडीन टर्फेनाडीन का डिसलोरेटाडीन लोरेटाडीन से उसकी जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फॉर्म होता है इसी तरह से लिवोसिट्राजीन जो है वो सिट्राजीन का प्योर एनंशियोमर है सो दो दे आर आल्सो दे ऑल दीज ड्रग्स आर belong to the second generation but sometime they are also referred as the next generation वरना है ये फर्स्ट और सेकंड दो ही आपके पास जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन हमने इसलिए कह दिया इनको कि जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं उसी में से थोड़ा सा आप कह लो कि उससे उससे फर्दर एक और थोड़ा सा आगे है लेकिन जनरली हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जनरेशन नहीं है Okay, this is the core of the topic, the basic, the structural requirement for a molecule to act as H1 receptor. ये जनरलाइज रिक्वायरमेंट है ये जो स्ट्रक्चर फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये वो केमिस्ट्री है ये वो फीचर्स हैं मॉलिक्यूल के जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वी हैव सर्टेन क्लासेस और सर्टेन क्लासेस आर ओरिजिनेटेड डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन विच वी मेक एट दिस एक्स ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है जो फिगर नज़र आ रही है ये विल्सन की है विल्सन एंड फॉय बोथ आर वेरी गुड एज अ सपोर्टिंग मटेरियल आप किसी एक को भी जो है वो फॉलो कर सकते हो ये जो पिक्चर है दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम फॉय and I will explain you the basic or generalized SAR of antihistamine with the help of this figure. जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी जैसे ये था ये भी वही है इसमें इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम जो लास्ट फिगर है उस पर आ ही जाएंगे तो वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द एक्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन जब करूँगी तो थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको अच्छा तो एक एक करके देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है अच्छा इसको याद करने के लिए बड़ा अच्छा जो तरीका है जैसे मैंने डायरेटिक्स में बताया था इस तरह से यहाँ भी कि इफ़ यू कंसिडर दिस नाइट्रोजन आपको नज़र आएगा इन एवरी मॉलिक्यूल चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो सेकेंड जनरेशन हो ये नाइट्रोजन कहीं नहीं जाता ये यही रहेगा और ये ज़रूरी है इसके ना होने से ये एंटीहिस्टामिनिक भी नहीं रहेगा तो ये ज़रूरी एलिमेंट इसको आप समझ लो ये हेड है इसका ये इसको अगर मैं नीचे यहाँ बनाऊँ ये आप समझ लो इसका हेड है ठीक है नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन इसका हेड है ठीक है फिर ये इसकी बॉडी है और बॉडी की टेल पे जो ये लगा हुआ है ये एक्चुअली डिफरेंट जो क्लासेस ओरिजिनेट करता है ये वो है ये एक्स और इसके पीछे आप समझ लें कि दो विंग्स हैं ये मैं जब लास्ट में ख़त्म करूँगी ना तो फिर आप दोबारा देखिएगा कि ये आपको उसको जो है वो समझ में आएगा कि मैं इसको इस तरह से क्यों डिस्क्राइब कर रही हूँ दो विंग्स समझ लें इसको ये मेन इसकी बॉडी हो गई ये हेड हो गया और दो एंटीना या एरियल आपके जो ये निकले हुए हैं ये जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो और आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि इसको इस तरह से मैंने क्यों कहा है कि आप अगर याद करना चाहें तो उसको याद रख सकते हैं ओके नंबर 1 एक्स हमारे पास हो सकता है नाइट्रोजन जहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं नाइट्रोजन जब हम नाइट्रोजन प्लेस करेंगे हमारे पास एक क्लास आएगी थाइलिन डायमीन उसको हम बाद में देखेंगे लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आ सकता है आपके पास अफोर्डेबिलिटी है अगर नाइट्रोजन हम प्लेस करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो आपका एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन कैन बी और ये एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन या CHO लिखा हुआ है उसको वो भी ये भी सही है लेकिन क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम कार्बन को जब यहाँ प्लेस करेंगे
मैंने एक्स की जगह जो है अगर मैं एक्स की जगह यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन लिखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो वैलेंसीज़ इसकी बचेंगी वो या तो हाइड्रोजन के साथ होगी या कार्बन के साथ होगी, तो इस हाइड्रोजन की यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो CO यानी ये आपका जब ये इधर स्पेसर से मिलेगा तो ईथर लिंकेज बनता है, लेकिन अभी CO याद रखो, CO हो सकता है और सिंपल कार्बन हो सकता है। यानी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं एक्स के, वो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये एक्स रिप्लेस हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्स वी हैव डिफरेंट क्लासेस, इथाइलिन डायमीन, इथेनॉल अमीन, अमीनो अल्काइल ईथर भी कहते हैं इसको, और आपके पास अल्काइल अमीन। अमाइन इसलिए आ रहा है, ये अमीन इसलिए आ रहा है कि ये अमीन आपके पास एंड पे नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास एक्स के। देन इफ यू विल सी द substitution on the X, aromatic 1 और aromatic 2, दो aromatic ring है जो आपके अटैच हो रहे हैं किसके साथ, X के साथ। ये aromatic ring, this aromatic ring could be this, can be simple phenyl, डाइफेनाइल, दो फिनाइल हो सकते हैं। सेकेंड, वन फिनाइल कैन हैव अ सब्सटीट्यूशन एट पैरा पोजिशन। ये सब्सटीट्यूशन जो यहाँ होगी पैरा पोजिशन पे कैन बी ऑफ मिथॉक्सी, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, बट द पोजिशन, मोस्ट फेवरेबल पोजिशन इज पैरा पोजिशन। इसके पैरा जहाँ ये अटैचमेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जहाँ से ये लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये इसका पैरा है, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड पे होगी। क्योंकि अगर यहाँ या यहाँ या यहाँ होती है तो ये जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फर्मेशन जो होगी दो की बनेगी वो पॉसिबल नहीं होगी। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इसको बीच में आप यहाँ नहीं लगा सकते। तो पैरा पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन, एंड दिस सब्सटीट्यूशन इज enhancing the activity. Second, we can insert any heteroatom, and heteroatom could be नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ पे, इस प्लेस पे या इस प्लेस पे, इसके जो शोल्डर है इस एरोमेटिक रिंग का, इसके शोल्डर पे मे बी वन शोल्डर और बोथ द शोल्डर्स कैन बी रिप्लेस, कार्बन कैन बी रिप्लेस बाय नाइट्रोजन। जैसे कि अभी इसमें ये बना हुआ ये अटैच है, इसका ये शोल्डर है और एक ये शोल्डर है, तो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। जैसे यहाँ मैंने बनाया एक यहाँ, ये वाला है, तो सिंगल नाइट्रोजन कैन बी, प्रोटीन भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। जनरली यू विल फाइंड कार्बोसाइक्लिक, बट इन सब केसेस यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल। क्लियर? तो हीट्रोएटम आ सकता है, पैरा सब्सटीट्यूशन पे हो, ये इस पे जो है कोई पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो सकती है, और ये हीट्रो आपको साइकिल, ये आपको पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। ये डायरेक्ट फिनाइल एक्स के साथ लग सकता है और वाया अल्काइल ग्रुप CH2 के साथ भी होके लग सकता है, बेंजाइल के फॉर्म में भी लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। And one more important thing about the position of these two rings, ये दो rings जो नजर आ रहे हैं, they should not be on the same plane। ये जैसे पेपर है, पेपर पे जिस तरह ये रखे हुए मैंने फ्लैट, ये इस तरह से रखे हुए नहीं होंगे। One ring, if suppose one ring is on the surface of this paper, then the other ring should be on the other plane. For example, ये जो दूसरा रिंग है, aromatic ring है, this should be towards you। ये आपको फेस कर, ये पेपर से बाहर निकल के आ रहा है, यानी ये पेपर के ऊपर नहीं है। तो this ring is facing you और this ring is on the plane of the paper। तो ये एक सरफेस पे नहीं है, फ्लैट एक सरफेस पे रखे हुए नहीं है, बल्कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा पोजीशन इनकी फर्क होती है, ये जरूरी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू सी द रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, कि ये दोनों जो हैं, दिस टू रिंग्स शुड नॉट बी ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? तो ये हो गए सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक रिंग, पोजीशन, हेटेरोएटम। नाउ वी विल सी स्पेसर। स्पेसर जो है सिंपल कार्बन की चेन है, दिस कार्बन चेन कुड बी 2 to 3 कार्बन, और एक्चुअली जो डिस्टेंस बनता है, द डिस्टेंस विच इज एक्चुअली फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस 2 to 3 कार्बन इज 5 to 6
एक्स्ट्रॉन का बनता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ हीटेरो एटम है। इस हीटेरो एटम की जो बाइंडिंग साइट है उसमें, और जो नाइट्रोजन की बाइंडिंग साइट है उसके बीच में जो ये आपकी कनेक्टिंग चेन है, इसका डिस्टेंस इतना होना चाहिए जनरली, जो कि आपको ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है वो देगा। अच्छा, दिस चेन कुड बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इसमें सैचुरेशन भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। Most of the time we will see unbranched, there should be no branching, लेकिन there is a class, exceptional case है where we'll find the branching, and in that class branching is important in order to separate the antihistaminic or antipsychotic activity. तो वहाँ पे तो है ब्रांचिंग, लेकिन जनरली जो है वो ब्रांचिंग एक्टिविटी ड्रॉप करती है। हमें सीधी चेन चाहिए जिसपे कुछ लगा हुआ ना हो, और वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होती है। सिर्फ एक सीरीज़ है, एक क्लास है जिसमें अनसैचुरेशन है, बाकी सब के अंदर जो है वो आपको सैचुरेशन नज़र आएगी। तो दिस इज़ द स्पेसर, ये आपका जो है वो कार्बन चेन है। नाउ कम टू द सब्स्टिट्यूशन ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो अपनी जगह है, इसके ऊपर जो ये आपको R1 R2 नज़र आ रहे हैं, जनरली यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सिंपल अल्काइल फंक्शनैलिटी। ये जो अल्काइल हैं वो आपको नज़र आएँगे, और यू कैन बाइंड दिस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन के 2 अल्काइल ग्रुप आपके लगे हुए हैं कार्बन-कार्बन के, इसको आप रिंग के थ्रू भी जो है वो इसको बाइंड कर सकते हैं इस नाइट्रोजन को। दिस द नाइट्रोजन कैन बी द पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम, और स्ट्रेट ये जो आपकी चेन है ये लंबी भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट उस पे, लेकिन जनरलाइज़ क्या है कि सिंपल अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? ये चेन आपकी जा सकती है इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, और एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। तो जब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि क्या लगा हुआ है, लेकिन जनरली अल्काइल ग्रुप और कार्बन चेन, स्ट्रेट अलिफेटिक चेन, और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बोथ आर पॉसिबल. So what we have seen the basic requirement: X, carbon, nitrogen, carbon oxygen, spacer जो बीच की बॉडी है इसकी, 2 to 3 कार्बन, नाइट्रोजन जो कि हेड है इसका, एसेंशियल, देन 2 एरियल या इसके एंटीना आप समझ लो, मिथाइल, और स्ट्रेट चेन होगी या रिंग फॉर्म में होगा, देन 2 विंग्स हैं इसके, अब इसको कोई बी या कोई बर्ड या उसके फॉर्म में भी इसको याद रख सकते हो कि ये जो शक्ल है ये इसकी हेड, और जो इसके विंग्स हैं, और इसकी बिल्कुल टेल पे एक मार्क लगा हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी मार्क है, क्योंकि इस मार्क से ही इसकी डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट क्लासेस बनती हैं इसकी। तो ये सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन और कार्बो और हेटेरोसाइक्लिक पोजीशनिंग। इसमें क्योंकि ये जो 2 रिंग्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उस वक़्त वहाँ मिस की थी मैंने, इसको यहाँ मैं वो बता देती हूँ कि इसमें जो ये रिंग्स हैं 2, ये फ्री भी हो सकते हैं, यानी 2 रिंग्स इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट रिंग्स भी हो सकते हैं, और हम इन रिंग को आपस में बाइंड भी कर सकते हैं। यानी ये 2 रिंग जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं वाया ब्रिजिंग ऑफ कार्बन और सल्फर की आपको ब्रिजिंग नज़र आएगी। इन दोनों जो रिंग्स हैं इनको हम आपस में यहाँ ऊपर से टाई कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका ट्राइसाइक्लिक रिंग जो है वो बन जाएगा। एक्स यहीं रहेगा, ठीक है? और सेंट्रल पोर्शन जो है इट शुड नॉट बी एरोमेटिक, इट शुड बी एलिफेटिक, क्योंकि अगर ये एरोमेटिक होगा तो फिर ये रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा पूरा आपका,
लेकिन हमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो ये एलिफेटिक होगा और ये ब्रिजिंग यहाँ से होगी, तो अगेन दीज 2 एरोमेटिक रिंग्स विल नॉट बी ऑन द सेम plane. So this is the basic structure requirement. In the next class, we will see very briefly the different classes of H1 first generation. क्योंकि यहाँ हमने जो रिक्वायरमेंट देखी है उसी के बेस पे जो क्लासेस बन रही हैं और फिर उनके साथ जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें एसोसिएटेड है वो हम देखेंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. विल सी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास. आई होप कि आप साथ साथ इसको तैयार करते जाओगे ताकि अगर फिजिकल क्लास में हम उसको असेस करें या टेस्ट हो उसका तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको. तो इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.